Hello everyone, I hope you all are doing good and safe. So, in this video, we are going to discuss the basic concepts of accounting, like what is accounting, what is the process of accounting, or we can say that accounting cycle. So, it is a very simple and straightforward video. Kindly make sure that you watch this video till the end so that you can be able to understand whole concept of accounting very practically and logically. So now first we should understand what is accounting. So as we all know that in a company there will are lots of financial transaction happening on daily basis. So for an accountant or as an accountant we have to record that data properly, or we can say that classify the data in a structural format and summarize that financial data into meaningful format so that it may be helpful to the users of financial information. So now here we will see what is the meaning of accounting. So accounting starts where bookkeeping ends. So from this line, one word bookkeeping comes into our mind, that what is bookkeeping. I will tell you further. Now this accounting definition divided into following parts: first recording, second classification, third summarizing, fourth financial data into meaningful format. So we will discuss one by one each step of accounting. So first step is recording. Recording in accounting means that recording of any voucher, bill, salary slip, etc. And this recording is done in a book known as journal. Okay, known as journal. ठीक है. Now the second is classification. So classification means it is concerned with the systematic analysis of recorded data. मतलब कि जो डेटा रिकॉर्ड किया गया है ना जर्नल में, उसका क्लासिफिकेशन होता है किसमें? लेजर में. ठीक है. देन द थर्ड इज समराइजिंग. तो समराइजिंग में क्या होता है, जो लेजर्स फॉर्म किए होते हैं ना, उनको समराइज किया जाता है एक टेबुलर फॉर्म में विच इज़ नोन एज ट्रायल बैलेंस. ठीक है. देन द फोर्थ स्टेप इज फाइनेंशियल डेटा. तो जो फाइनेंशियल डेटा है ना, वो क्या है? कंपनी की इंफॉर्मेशन है कि मतलब कंपनी की पोजीशन क्या है, फाइनेंशियली कंपनी कैसी है. ठीक है. तो इसको अपन फाइनेंशियल पोजीशन बोल सकते हैं. ठीक है. इनटू मीनिंगफुल फॉर्मेट. अब मीनिंगफुल फॉर्मेट का मतलब क्या है कि जैसे किसी को अगर कंपनी की पोजीशन के बारे में पता करना है कि कंपनी की पोजीशन क्या है, तो वो ऐसा तो है नहीं कि पूरे बिल वगैरह, लेजर, ट्रायल बैलेंस सब कुछ देखेगा कंपनी का. तो मीनिंगफुल फॉर्मेट में दो चीज़ें आती हैं. सबसे पहले आता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जिसको अपन P&L अकाउंट बोल सकते हैं. एंड द सेकंड वन इज बैलेंस शीट. ठीक है. तो जो कंपनी की प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट होता है, वो हर एक कंपनी की वेबसाइट पे अपलोड रहता है. तो वहाँ पर जाकर अपन कंपनी के बारे में जान सकते हैं कि कंपनी की पोजीशन क्या है. सो हेयर आई कंक्लूड द डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग बाय सेइंग दैट अकाउंटिंग स्टार्ट्स वेयर बुक कीपिंग एंड्स. अभी बुक कीपिंग का मतलब क्या है वो अपन देखते हैं. ठीक है. एंड अकाउंटिंग इज द रिकॉर्डिंग, क्लासिफिकेशन, समराइजिंग द फाइनेंशियल डेटा इनटू मीनिंगफुल format. Okay, now let's see what does bookkeeping means. So here, process of accounting. Fine. So in process of accounting, the first thing is source of document. So source of document means like evidence. Okay, evidence, or we can say that bill, salary slip. ठीक है. Then that source of document is to be recorded in journal books. Okay, based on the source of document, entries need to be passed in journal books. Entry to be passed in journal book. Okay. Then after doing entry in journal books, we need to create ledgers. Ledgers are what? Ledgers are those
in which date, particulars, amount all have been shown, and we get so many debit and credit balances from ledger. Okay, now after preparing ledger, we need to prepare trial balance. In trial balance, we take all those balances which of ledgers and summarizes it into a statement known as trial balance. Fine. And after preparing trial balance, we need to prepare financial statement. First financial statement is profit and loss account, and the second financial statement is balance sheet. Fine. Now we need to know what is bookkeeping. So from the process of source of document till the preparation of trial balance, the process is known as bookkeeping. Okay, from source of document till the trial balance, the process is known as bookkeeping. So accounting starts where bookkeeping ends. Means accounting वहाँ से शुरू होती है जहाँ पर ट्रायल बैलेंस, ये जो ट्रायल बैलेंस है ये प्रिपेयर होता है, उसके बाद अकाउंटिंग शुरू होती है. तो अकाउंटिंग शुरू मतलब कब होती है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट. ठीक है. अब इनटू मीनिंगफुल फॉर्मेट, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट. फाइन. तो जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाएंगे, लाइक बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे, तो तब अपना जो अकाउंटिंग का प्रोसेस है वो पूरा अकम्प्लिश होगा. ठीक. ओके, सो एज टू प्रिपेयर बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, वी नीड टू नो द बेसिक 5 एलिमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट. राइट. तो द first element of financial statement is asset. So first we should know what is asset. So asset is the future economic benefit or anything which gives future benefit to the business or firm. ठीक है. Now the second is liability. So liability is like the amount which the firm or business owns to the outsiders, or we can say like creditors. To calculate or to compute liability, an equation is like this: assets minus capital. Now for this equation, we know what is asset. Now we have to know what is capital. Capital here means equity. ठीक है. मतलब कि जो कंपनी या बिजनेस की कैपिटल होती उसको अपन लोग इक्विटी बोलते हैं. कंपनीज capital. Okay. Now the fourth one is revenue. Revenue means profit, income or gain of business. Okay. And expenses means losses, या we can say like खर्चे होते जो कंपनी के, like rent, salary etc. Okay. तो ना अब अपन रूल समझते हैं कि रूल क्या फॉलो करने पड़ते हैं सो एज टू प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट. ठीक है. तो सबसे पहले एसेट्स. तो अब अपन को पता है कंपनी में कोई चीज़ आती है. ठीक है. कोई चीज़ आती है तो उसको क्या करते हैं? डेबिट. और कंपनी से कोई चीज़ जाती है तो उसको क्या करते हैं? क्रेडिट. ठीक है. अब कंपनी में अगर एसेट आया, ठीक है, कंपनी में अगर एसेट आया तो उसको अपन क्या करेंगे? डेबिट करेंगे. ठीक है. अगर कंपनी में एसेट आया, ठीक है, मतलब इंक्रीज हुआ कंपनी का एसेट, तो उसको डेबिट करेंगे. ठीक है. अब अगर कंपनी से एसेट बाहर गया तो उसको क्या करेंगे? क्रेडिट. कंपनी से एसेट बाहर गया मतलब कि अगर कंपनी से कोई एसेट बाहर जा रहा है तो वो क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा. तो डिक्रीज को क्या करेंगे अपन? क्रेडिट. ठीक है. अब लायबिलिटी. तो लायबिलिटी मतलब क्या होता है? एसेट माइनस कैपिटल. एसेट का तो मतलब अपन को पता चल गया. कैपिटल का मतलब जो कंपनी की कैपिटल होती है, जो शेयर होल्डर्स
मतलब रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो वो ठीक है। तो फॉर एग्जांपल अगर जैसे बिजनेस ने अपने किसी एम्प्लॉय को 50,000 रुपीज़ दिए, ठीक है, तो 50,000 रुपीज़ जिस एम्प्लॉय को दिए हैं उसका अकाउंट क्रेडिट होगा, ठीक है, और कंपनी क्या होगी, डेबिट होगी। तो डिक्रीज इन लाइबिलिटी, इसको क्या करते हैं, डेबिट करते, एंड इंक्रीज इन लाइबिलिटी को क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। ओके, मतलब जो अगर लाइबिलिटी में कोई भी डिक्रीज हो रहा है तो उसको डेबिट साइड रिकॉर्ड करेंगे, और लाइबिलिटी में अगर इंक्रीज हो रहा है, कंपनी की जो लाइबिलिटी है अगर उसमें इंक्रीमेंट हो रहा है तो उसको क्रेडिट साइड लिखेंगे, ठीक है। नाउ द थर्ड इज इक्विटी। इक्विटी क्या होता है, मतलब वो वैल्यू जो रिप्रेजेंट करती कि कंपनी के शेयर होल्डर्स को कितना अमाउंट दिया जाएगा जब कंपनी की जितने भी एसेट्स हैं ना वो लिक्विडेट हो जाएंगे, और जो कंपनी के जितनी भी लाइबिलिटीज़ या कंपनी के जितने भी डेब्ट्स हैं वो पेड ऑफ हो जाएंगे, ठीक है। सो फॉर एग्जांपल जैसे कंपनी में अगर एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड हुआ, ठीक है, तो कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। सेम वे अगर कंपनी का मतलब जो प्रोपराइटर है, सोल प्रोपराइटर है किसी फर्म का, अगर वो अपने पर्सनल यूज़ के लिए कोई ड्राइंग्स करता है तो कम कैपिटल अकाउंट जो होता है फर्म का वो डेबिट हो जाएगा। तो डिक्रीज इन कैपिटल को डेबिट करेंगे एंड इंक्रीज इन कैपिटल को क्रेडिट करेंगे। ओके, नाउ द फोर्थ वन इज रेवेन्यू। रेवेन्यू मतलब क्या, प्रॉफिट, इनकम या गेन, जो भी फर्म को या कंपनी को प्रॉफिट हो रहा है या इनकम या गेन हो रहा है तो वो रेवेन्यू का पार्ट माना जाएगा, ठीक है। तो अब अगर कंपनी में प्रॉफिट हो रहा है तो इसका मतलब क्या, अगर कंपनी में प्रॉफिट हो रहा है डेट मीन्स कंपनी का कैपिटल क्या होगा, बढ़ जाएगा, कैपिटल इंक्रीज होगा, ठीक है। सेम वे अगर तो फिर जैसे रिकॉर्ड होगा, तो अगर कंपनी का कैपिटल बढ़ रहा है तो यहाँ पे क्रेडिट करेंगे। लाइकवाइज अगर रेवेन्यू है जो, तो इंक्रीज इन रेवेन्यू उसको क्या करेंगे, क्रेडिट। एंड अगर कोई डिक्रीज हो रहा है रेवेन्यू में, डिक्रीज इन रेवेन्यू, तो उसको क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। नाउ द फिफ्थ वन इज एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस मतलब क्या होता है, जो कंपनी के लॉसेज या जो खर्चे होते हैं, जैसे कि मंथली रेंट पे करना पड़ता है कंपनी को या फर्म को, सैलरी देनी पड़ती है एम्प्लॉयज़ को, तो वो एक्सपेंसेस में आता। अब अगर डिक्रीज इन कैपिटल है तो क्या करते हैं, डेबिट। अब अगर एक्सपेंसेस कंपनी जैसे पे करती है तो अब नॉर्मल सी बात है, कंपनी कोई आर्टिफिशियल पर्सन तो है ही, तो वो जितना भी कंपनी के जितने भी एक्सपेंसेस पे होते हैं वो कंपनी के कैपिटल में से होते हैं। तो डिक्रीज इन कैपिटल जैसे डेबिट करते हैं, डेट मीन्स डिक्रीज इन एक्सपेंसेस डेबिट करेंगे। ओके, सॉरी इंक्रीज इन एक्सपेंसेस डेबिट करेंगे, बिकॉज कंपनी का कैपिटल डिक्रीज होता है इंक्रीज इन एक्सपेंसेस से, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रहता है। एंड अगर डिक्रीज इन एक्सपेंसेस होगा मतलब कि कंपनी में अगर एक्सपेंसेस या खर्चे कम होंगे तो कंपनी का कैपिटल बढ़ेगा, और बढ़ते हुए कैपिटल को अपन क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं, तो इधर भी क्रेडिट करते हैं इंक्रीज इन कैपिटल को। तो जब खर्चे कम हो जाएंगे तो अपन क्रेडिट करेंगे। अब जब अपन फाइनेंशियल स्टेटमेंट जैसे दो तरह की होती है, पहला प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, आफ्टर ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करना पड़ता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एक मेमोराइजिंग टेक्निक है, सी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट मतलब कि क्या, अभी अपन लोगों ने देखा रेवेन्यू आइटम्स, एंड लॉसेस में क्या, एक्सपेंसेस आइटम, ठीक है। तो जब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर करेंगे तो उसमें रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। रेवेन्यू आइटम एंड एक्सपेंसेस आइटम रिकॉर्ड करेंगे किसमें, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ओके, नाउ व्हाट अबाउट बैलेंस शीट। जैसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तो बन गया, अब बैलेंस शीट का क्या करना पड़ेगा।
तो बैलेंस शीट में रिमेनिंग ये 3 एसेट, लाइबिलिटी एंड इक्विटी, ये तीनों आइटम किस में रिकॉर्ड होते हैं? ये तीनों आइटम रिकॉर्ड होते हैं बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट में ये आइटम, तीनों आइटम रिकॉर्ड होते हैं बैलेंस शीट में। एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट रिकॉर्ड होता है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या रिकॉर्ड होता है? रेवेन्यू आइटम एंड एक्सपेंस आइटम। फाइन। नाउ जो रूल्स हैं वो इस फॉर्म में समराइज किए जा सकते हैं, आपको इजी होगा। लाइक सी हर ट्रांजैक्शन का या तो डेबिट होता है या क्रेडिट होता है, ठीक है। तो अगर इंक्रीज इन एसेट या इंक्रीज इन एक्सपेंसेस हो रहा है कंपनी का या फर्म का, तो उसको क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। तो अपोजिट साइड अगर डिक्रीज या इन एसेट और एक्सपेंसेस होगा तो उसको क्रेडिट करेंगे, ठीक है। लाइकवाइज अगर कंपनी या फर्म की लाइबिलिटी, कैपिटल या इनकम, इन तीनों में डिक्रीज हो रहा है तो उसको डेबिट करेंगे। एंड अपोजिट अगर इन लाइबिलिटी, कैपिटल, इनकम इन तीनों में इंक्रीज हो रहा है तो उसको क्रेडिट करेंगे। ओके। तो ये जो डेबिट एंड क्रेडिट का है वो ज़रूरी नहीं है कि हमेशा फेवरेबली, डेबिट मतलब हमेशा कंपनी के फेवर में भी हो, कभी कभी हो सकता है डेबिट फेवरेबल और अनफेवरेबल बोथ दिखाएं, ठीक है। तो किस पर डिपेंड करता है? नेचर ऑफ अकाउंट पर डिपेंड करता है, ठीक है। मतलब जो ट्रांजैक्शन है उस पर डिपेंड करेगा कि फेवरेबल है या अनफेवरेबल है। सिमिलरली इन केस ऑफ एसेट, लाइव और एक्सपेंसेस, अगर इंक्रीज हो रहा है तो डेबिट, डिक्रीज हो रहा है तो क्रेडिट। ओके। एंड लाइबिलिटी, कैपिटल और इनकम, अगर डिक्रीज हो रहा है तो डेबिट और इंक्रीज हो रहा है तो क्रेडिट। ओके। सो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि व्हाट इज अकाउंटिंग एंड व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग। सो हियर आई कंक्लूड। थैंक यू सो मच। स्टे होम, स्टे सेफ।